Hello everyone, warm welcome to my channel. In my today's video, I will talk about cropping seasons in Jharkhand. We will talk about agriculture sector of Jharkhand, like what kind of crops are grown in Jharkhand in which cropping season. There are basically three cropping seasons. So we will talk about most important sector on which the majority of livelihood depends upon, that is agriculture sector. Okay, so we will see that what are the cropping seasons and what kind of crops are grown in that season, what is the duration of that cropping season, and what are the basic areas or important districts where that particular crops are grown in the state Jharkhand. So without any further delay, let's start the video. So there are basically three cropping seasons: Kharif, Rabi and Zaid. Okay, starting off with Kharif crops. Kharif crops are whatever crops comes under Kharif crops, we will see it later. Kharif crops are basically shown in the month of June, like they are basically shown in the month of May to June, and they are harvested in the month of September to October. जो खारिफ क्रॉप्स होते हैं, जो भी क्रॉप्स या जो कुछ भी खारिफ क्रॉप्स के अंडर आते हैं, उन्हें अप्रैल टू जून के मंथ के बीच में शोन किया जाता है, लगाया जाता है, और उनकी जो हार्वेस्ट होती है, जो क्रॉप्स जो होते हैं वो सितंबर टू अक्टूबर मंथ के बीच में हार्वेस्ट करते हैं, मच्योर्ड हो जाते हैं. ठीक है, तो when you are writing about kharif crops, you should underline the most important highlights which comes under that particular crops. So May to June is the showing season, and September to October is the harvesting season for kharif crops. You can underline this as well. And then coming to the kind of crops which are being shown and harvested under kharif crops category are rice, maize, bajra. These are some of the crops that are grown in Jharkhand in Kharif season. Okay, now we will see about the basic districts that are predominant in the production of these crops. So these are the districts lined up in the production of Kharif crops which shows good productivity in their particular district, that is West and East Shingbhum. Again, you should underline the districts where that particular crops are shown. Okay, West and East Singhbhum, Dhanbad, Giridih, Bokaro and Pakur. For special attraction, if you underline the important highlights, that gain special attraction. Okay, so West and East Shinghbhum, Dhanbad, Giridih, Bokaro and Pakur are the major districts for the cultivation of Kharif crops. Okay, and crops are basically the crops which are grown in this season in state Jharkhand is rice, maize and bajra. And among these three crops, the most predominant crops which are which is grown majorly in the state is rice. Okay, rice is the crop which is grown majorly in this season in this state. Okay, so this is the highlight of cropping season Kharif of Jharkhand and some of the districts. Okay, next moving forward to Rabi crops. Next cropping season is Rabi cropping season. So basically Rabi harvest is not that much in productivity as of Kharif crops. Rabi crops के अंदर जो भी crops आते हैं उनकी जो showing harvesting होती है वो खारिफ क्रॉप्स के कंपैरिजन में कम होती है, बिकॉज ऑफ फूड हैबिट्स उनकी प्रोडक्शन उतना ज़्यादा नहीं करी जाती है झारखंड स्टेट में. ऑल्दो प्रोडक्शन होती है, बट because of the reason, because of the food habits, because of the pattern of taste and necessity that people of the state likes, राबी क्रॉप्स की जो प्रोडक्शन होती है वो कम होती है. जो क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन होती है वो एज़ कम्पेयर टू खारिफ क्रॉप्स कम होती है, बिकॉज लोगों की फूड हैबिट्स के अकॉर्डिंग ही प्रोडक्शन करी जाती है. तो डिमांड अगर उतनी ज़्यादा रहेगी नहीं तो सप्लाई उतना होगा नहीं. ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट ये है कि लो प्रोडक्शन ऑफ राबी हार्वेस्ट होता है. ठीक है,
अब रीज़न भी फूड हैबिट्स, लोगों की फूड हैबिट्स ऐसी हैं, टेस्ट हैबिट्स ऐसी हैं, या जिस तरीके की डिमांड आती है क्रॉप्स को लेकर, तो उस वजह से जो प्रोडक्शन है वो डिक्लाइन करता है। राबी क्रॉप्स का जो प्रोडक्शन है वो डिक्लाइंड है, कम है एज़ कम्पेयर टू खरीफ क्रॉप्स। अब हम देखेंगे शोइंग एंड हार्वेस्टिंग सीज़न क्या है। तो अभी हमने खरीफ क्रॉप्स में देखा कि सितंबर टू अक्टूबर जो होता है वो हार्वेस्टिंग सीज़न होता है खरीफ क्रॉप्स का, जहाँ पे क्रॉप्स जो है, फसल जो है वो मैच्योर्ड हो जाते हैं, हार्वेस्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो अक्टूबर के बाद नवंबर मंथ आता है, तो नवंबर से फिर राबी क्रॉप्स को लगाया जाता है। खरीफ क्रॉप्स अक्टूबर तक कंप्लीट हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं, उनकी हार्वेस्टिंग हो जाती है। देन उसके बाद नेक्स्ट जो क्रॉप शोन किया जाता है वो होता है राबी क्रॉप्स। तो राबी क्रॉप्स को शोन करने का सीज़न होता है अराउंड नवंबर दिसंबर, और हार्वेस्टिंग का सीज़न होता है मार्च अप्रैल के अराउंड। ठीक है, तो फर्स्ट वाला जो है वो शोइंग सीज़न, बिकॉज हम क्रॉप्स लगाएंगे, उसे हम शोन करेंगे, तभी तो वो हार्वेस्ट होगा ना। तो फर्स्ट जो सीज़न होता है वो सोन का सीज़न होता है। सेकेंड सीज़न जो होता है वो मैच्योरिटी और हार्वेस्ट का सीज़न होता है। तो नवंबर टू मार्च जो होता है वो राबी क्रॉप्स का ऑल अराउंड ड्यूरेशन होता है, सीज़न होता है। यू शुड डेफिनेटली अंडरलाइन देयर सीज़न ड्यूरेशन। ओके, नाउ what are the kinds of crops that comes under rabi crops for that particular state Jharkhand? ठीक है, wheat, gram, mustard, pulses. Okay, wheat is गेहूँ, gram is चना, mustard is सरसों, pulses are दाल, lentils पे जिसे हम कहते हैं। ठीक है, and the major producing districts of these crops are Sahibganj, Palamu, Garma and Godda. Definitely underline these districts. तो ये सारे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो ये सारे क्रॉप्स का प्रोडक्शन करते हैं इन अ लिमिटेड क्वांटिटी, जितनी ज़रूरत होती है। ओके, एंड जो इसकी प्रोडक्शन है, राबी क्रॉप्स की जो प्रोडक्शन है वो बेसिकली झारखंड में थोड़ी कम क्वांटिटी में होती है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट कैटेगरी एंड लास्ट कैटेगरी, दैट इज़ जायद क्रॉप्स। ओके, जायद क्रॉप्स, these are also known as summer season crops because their cultivation and harvesting season lies in summer season. Okay, as mentioned these are summer season crops, तो उन्हें शोन भी समर सीज़न में ही किया जाता है और हार्वेस्टिंग भी समर सीज़न में ही किया जाता है। मार्च में राबी क्रॉप्स जो हैं वो मैच्योर्ड हो जाते हैं, हार्वेस्टिंग हो जाती है मार्च में। देन उसके बाद से देखिए सारे क्रॉप्स का अपना एक सीज़न है, एक क्रॉप को पहले लगाया जाता है, फिर वो मैच्योर्ड होती है, फसल को काटा जाता है, देन उसके बाद दूसरे क्रॉप का सीज़न आता है, तो उस टाइम फिर उस क्रॉप को लगाया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं सारी जो क्रॉपिंग सीजन्स है वो एक कंटिन्यूएशन में एक सीरीज़ आ रहे हैं। जिस मंथ में किसी पार्टिकुलर क्रॉप की हार्वेस्टिंग हो रही है उसके नेक्स्ट मंथ में किसी पार्टिकुलर क्रॉप्स की शोइंग होती है। तो जायद क्रॉप्स जो होता है वो खरीफ क्रॉप्स और राबी क्रॉप्स के क्रॉपिंग सीज़न, क्रॉपिंग जो ड्यूरेशन है उसके बीच में आता है। ठीक है, बिकॉज ये समर सीजन क्रॉप्स होता है। खरीफ क्रॉप्स जो है वो अ काइंड ऑफ मानसून वाला सीज़न हम बोल सकते हैं, मानसून वाले सीज़न में, बिकॉज जून में झारखंड में मानसून आ जाती है, तो मानसून वाले सीज़न में ये सारे क्रॉप्स होते हैं। देन राबी क्रॉप्स जो होता है वो विंटर सीज़न वाले क्रॉप्स होते हैं, बिकॉज नवंबर टू मार्च झारखंड में विंटर सीज़न का टाइम चल रहा होता है, एंड मार्च टू जून जो है वो बिल्कुल गर्मी वाली सीज़न होती है, समर सीज़न, वार्म वेदर वाली सीज़न होती है। ठीक है, तो ये दोनों सीज़न के बीच में आता है जायद सीज़न, दैट इज़ जायद क्रॉपिंग सीज़न। ठीक है, तो मार्च जो है, मार्च मंथ में जायद क्रॉप्स को शोन करना शुरू किया जाता है, एंड जून आते आते इस क्रॉप की हार्वेस्टिंग हो जाती है, क्रॉप्स मैच्योर्ड हो जाते हैं। तो ये इस तरीके से समर सीज़न क्रॉप्स है। इस सीज़न में पार्टिकुलरली ऐसे क्रॉप्स या ऐसे वेजिटेबल्स या ऐसी चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं जो समर सीज़न के लिए अप्रोप्रिएट होती हैं, और ऐसे क्रॉप्स को वार्म वेदर चाहिए होता है फॉर देयर परफेक्ट प्रोडक्शन। वार्म वेदर चाहिए होता है जो भी क्रॉप्स होते हैं उन्हें। तो हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से क्रॉप्स हैं जो इस सीज़न में प्रोड्यूस करे जाते हैं। मेलन्स, हर तरह के मेलन्स, वाटरमेलन्स, मस्क मेलन्स, देन कुकम्बर, खीरा, वेजिटेबल्स,
कुछ अलग तरीके के जो गर्मी में आने वाले जो भी वेजिटेबल्स होते हैं उन्हें शोन किया जाता है इस टाइम पे। मेज, नट, ग्राउंड नट, ये सारी चीज़ें जो हैं वो वार्म क्लाइमेट में ज़्यादा अच्छे तरीके से ग्रोन हो पाती है, प्रोड्यूस हो पाती हैं। ठीक है, जैसा कि हमने अभी देखा कि राबी एंड खारिफ सीज़न के बीच में ये क्रॉपिंग सीज़न आता है। जायद क्रॉपिंग सीज़न कम्स अंडर राबी, कम्स बिटवीन राबी एंड खारिफ क्रॉपिंग सीज़न। इन क्रॉप्स की एक अलग स्पेशलिटी होती है कि जो जायद क्रॉप्स होते हैं उन्हें मच्योर्ड होने में काफ़ी कम टाइम लगता है एज़ कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द क्रॉपिंग सीजन्स। वो बहुत जल्दी, बहुत कम टाइम में, लाइक लिमिटेड मंथ्स में ही वो मच्योर्ड हो जाते हैं एंड उनकी हार्वेस्टिंग करी जाती है। अर्ली मच्योर्ड हो जाते हैं ये सारे क्रॉप्स, जायद क्रॉप्स जो होते हैं। देखा हमने मेलन्स, कुकम्बर, वेज, सर्टेन काइंड ऑफ वेजिटेबल्स, मेज, नट्स, जो भी समर सीजन के वेजिटेबल्स होते हैं, ये सारे क्रॉप्स जो हैं वो जायद क्रॉपिंग सीजन के कैटेगरी के अंदर आते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि झारखंड में कौन कौन से ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे जायद क्रॉप्स अच्छी क्वांटिटी में कल्टिवेट किए जाते हैं। तो रांची, गुमला, लोहरदगा, दुमका आर द डिस्ट्रिक्ट्स वेयर जायद क्रॉप्स आर सोन एंड हार्वेस्टेड। ओके, तो मेक श्योर करें कि ये सारी हुई क्रॉपिंग सीजन्स की बात। झारखंड की बात कर रहे हैं हम स्पेसिफिकली। ऐसा तो क्रॉपिंग सीजन्स हर जगह के लिए होते हैं, बट हम झारखंड स्पेसिफिक बात कर रहे हैं कि किस तरह की हर जगह की लैंड कंडीशन, वेदर कंडीशन अलग होती है, तो उसके अकॉर्डिंग ही वहाँ पर प्रोडक्शन होती हैं। जैसी कंडीशन है, जिस क्रॉप को जैसी वेदर, क्लाइमेट, सॉइल कंडीशंस चाहिए होती है, वो उसी जगह पर अच्छी तरीके से एज़ पर द रिक्वायर्ड नेसेसिटी कल्टिवेट करी जाती हैं। ठीक है, तो मेक श्योर करें कि जब भी आप बता रहे हूँ क्रॉपिंग सीजन्स के बारे में, तो जो भी स्पेशल हाइलाइट्स है, लाइक कहाँ शोन करी जाती हैं, क्या क्रॉपिंग सीज़न है, शोन करने का क्या सीज़न है, हार्वेस्टिंग का क्या सीज़न है, ऑल इन ऑल क्या ड्यूरेशन है, और दैट पार्टिकुलर स्टेट के किस डिस्ट्रिक्ट्स में वो क्रॉप्स का मेजरली प्रोड्यूस किया जाता है, उस चीज़ को आप पार्टिकुलरली अंडरलाइन करें जब भी आप क्रॉपिंग सीज़न या एग्रीकल्चर से रिलेटेड किसी आंसर को दे रहे हो, या फिर अगर आप डेटाज कुछ वहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं, लाइक राइस की कल्टीवेशन ही अगर आप बता रहे हैं खारिफ क्रॉप्स में कि कैसे राइस जो है वो प्रीडोमिनेंट क्रॉप है खारिफ सीज़न का झारखंड में, तो अगर आपके पास सपोर्ट करने के लिए कुछ डेटाज वगैरह हैं तो मेक श्योर करें उसे भी बहुत हाईलाइटेड फॉर्म में दिखाएं। बिकॉज जब आप सिंपल प्लेन तरीके से आंसर लिख रहे हैं और वहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करते हैं, तो एग्जामिनर का स्पेशल अटेंशन जाता है वहाँ पे, एंड वो आपके लिए एक एडवांटेज क्रिएट करता है आपकी पेपर के लिए। ओके, तो बेसिकली हमें क्रॉपिंग सीजन्स में यही देखना था, ड्यूरेशन क्या होता है, कौन से क्रॉप्स किस स्टेट में प्रीडोमिनेंट होते हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट्स उसे कल्टिवेट करते हैं, वो सारी चीज़ें हमने आज के इस वीडियो में देखी। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे मेजर क्रॉप्स ऑफ झारखंड। झारखंड में कौन से मेजर क्रॉप्स हैं जिनकी कल्टीवेशन मेजर प्रोपोर्शन में की जाती है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्रॉपिंग सीजन के लिए। दैट्स ऑल for my today's video. I hope you find my today's video helpful and informative. If you find it so, then kindly subscribe to my channel Learn and Upturn. I upload videos every Monday, Wednesday and Friday. This is the time when I'm uploading JPSC Mains 2021 series, examination series video. क्रॉपिंग season video is in the context of JPSC series as well. So make sure you subscribe to my channel for such informative videos. If you want me to make videos on any certain specific topic or content, you can write down in the comment section below. I will definitely consider your request. Thank you so much for watching this video. Take care and bye.